much of doubt and इसकी भी बात करेंगे थोड़ा सा, है ना? So we'll also talk sure, about this a sure, little bit, है ना? definitely, इसके बारे में no भी issues. कि exactly since you are there, कैसा mood है वहां पर, right? Exactly. And we'll talk a little bit about this. Yeah, definitely. Right, super. So I believe that with this, um, looks like we have just hit the live button, and Anjum, indeed we are live. So here you go. Welcome everyone, and this is Atin Soni. I welcome all of you to this author talk show, and today in this very interesting setup that I'm in because of this heavy bad weather at the place where I live. I have the privilege to welcome my special guest, who is none other than a good friend, my author, and I mean I just like to call her my good friend. Her name is Dr. Anjum Padiyar. Dr. Anjum, very warm welcome to you. Thank you, and good morning from Los Angeles. राइट सो दोस्तों, आप सबको बता देता हूँ कि अंशुम इस समय है यूएस में, लॉस एंजलिस से लाइव है इस वक्त हमारे साथ। और ये आई मीन दैट इज look at the this thing that she wanted to she said yes to it. She could have said no because she was in different part of the world, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने yes कहा और सुबह के 5:30 बजे she is live right now with all of us. So please type hi Anjum in the chat box, everybody who's listening to us right now, please type hi Anjum in the chat box. तो अंजुम यूएस में है आप इस वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एक और बार शुक्रिया कि आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अभी आप Anytime. जुड़े हैं हमारे साथ। राइट Anytime. तो दोस्तों अंजुम शी इज an Amazon #1 best-selling author. She's a visiting a lecturer, and she's a speaker, she's a coach, and she's into fitness a lot, and lot more things. So अगर मैं शुरू हो जाऊंगा, so probably I'll just go on and on. So what I'm going to do is I'm going to let Anjum talk a little bit about herself. Anjum, me and my audience wants to know a little bit about yourself and your journey. Please share it. Uh, that's my pleasure. Um, I'm a born gymnast, sports person, and a teacher. So, bachpan se hi, I wanted to become a teacher and I wanted to become a sports teacher. So, when I was in seventh class, that's way back in 1987, I played my first national, represented in Delhi. And from there, I began my journey towards the international career being a gymnast. For the education also, I wanted to get admitted into LNIP Gwalior, that is now LNIP Gwalior Lakshmi Bai National Institute of Physical Education and Sports Sciences. That is best in Ji. Asia till date, Wow. and that was my aim. So I've just targeted, I have just well prepared. After my 12th, I got it. So I was very clear in my life, in my aim, and my vision. मुझे क्या करना है. So that जी. was it made me. I think people just ask me कैसे इतना achieve किया, पर मुझे लगता है because of the clarity, it was very easier for me. I always knew what I want. So entered as a second topper in admission entrance examination, and just my father asked when he was leaving me for in my hostel, अंजुम टॉपर बनकर अंदर गई हो, टॉपर बनकर बाहर आओगी. And that was just a one phrase, one line. It has motivated so much. Like I was so committed since the very first day कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है, मुझे टॉपर बनना है. So with the journey of very hard physical training for gymnastics, for all this casual we have started from at 5:30 till 10:30. It was a very tough schedule we used to follow for the whole degree, throughout the degree. And then from my journey began. So it was very easy for being a fitness freak and being so fit. I have introduced aerobics in way back 1992, running my aerobic studio, and then got married with my dream boy. So the journey was very beautiful. Journey was very successful, and then it came crashing down when I got paralytic attack during a very normal phenomena for a lady to be pregnant. So from there, that was the learning from the life.
which no book can taught you. सो यहाँ से जो था ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। और मुझे लगता है, जिसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, कि जो आपका टफेस्ट टाइम होता है वो आपका टर्निंग टाइम होता है, टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। तो बहुत बहुत खराब हालत थी मेरी, बिकॉज जिसे कहते हैं ना हिंदी में जान के लाले पड़ना। तो जी जी जी, मेडिकल ये हम अच्छी साइंस, तरीके से समझ सकते हैं अभी इस वक्त या ड्यू टू दिस पैंडेमिक। exactly. And जी। medical sciences that time also didn't have any answer for my question, what happened to me? Oh, I क्योंकि can relate to it. Yeah. सो क्योंकि हर कोई जो भी आता था मिलने भी, फैमिली में भी जिसको पता लगता था, चाहे वो दोनों तरफ की फैमिली, फ्रेंड्स, कि हुआ क्या है। तो दैट वाज, एंड देयर वाज नो आंसर। आई वाज bedridden. I turned out totally black because of the bad circulation, blood circulation, and severe pains. Body pains were very severe. So every 4 hours, I used to get Voveron injection. So that's a very strong injection for the, उसके बाद तो सिर्फ मॉर्फिन ही रह जाता है। सो आप समझ भी नहीं सकते हैं मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली मेरी मदर, मेरे हस्बैंड कितने वर्रिड थे मेरी हेल्थ के लिए। और डॉक्टर्स, दे वर नॉट टेकिंग एनी गारंटी ऑफ माई लाइफ और माई बेबीज लाइफ। सो मेरे अभी भी रोंगटे It's खड़े been a हो really जाते हैं tough व्हेन आई time. एक्सप्लेन, या मैं अभी भी एक्सप्लेन करती हूँ। I नाउ इट्स 26 years। और डॉटर अब मेरी हैप्पीली मैरिड हियर इन लॉस एंजलिस। और दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट बुक, मार्शल द माइंड, which is written by heart, by heart. and who knows it better than me? दोस्तों, आप सबकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अंजुम ने अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की लर्निंग्स, और जिस तरीके से, not just because of the medicines or the treatment that she got. I think what happened here, how she fought this battle here, is what really helped her come out of that tough time, which it was, as she rightly said, like जान के लाले पड़ना, and I'm sure all of us can relate to it. तो आज हम अंजुम से बात करने वाले हैं पावर ऑफ माइंड की, आज हम अंजुम से बात करने वाले हैं उनकी लर्निंग्स की, आज हम अंजुम से बात करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों की। और अगर आप सब इस वक्त जो हमारे साथ कनेक्टेड है यूट्यूब पर, इन केस यू हैव एनीथिंग टू आस्क टू अंजुम, अंजुम, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग आपको हेलो कह रहे हैं, राजेंद्र, श्रुति, प्रिया, रोहन, निशांत, देव, एंड a lot of other people are saying hello to you. So so right now, by the Hello way, to all. everybody who has joined us, yeah, so everybody who has joined us late, yeah, Anjum is live with us from Los Angeles. She's in US right now. सुबह के 5:30 के आसपास वो लाइव है, और जब हम यहाँ लगभग 6 बजे की चाय को एंजॉय कर रहे हैं, अंजुम इज ट्राइंग टू हैव हर मॉर्निंग कॉफी, राइट? तो Right. अंजुम, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बाय द वे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा यूएस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कैसा चल रहा है अभी यहाँ इंडिया में? द सेकंड वेव इज क्रिएटिंग हैवोक हियर। कैसा है यूएस का हाल? यहाँ बहुत कूल एंड काम है, because more than 60% population has been vaccinated, and I'm glad. It's There is no question about the vaccination over here. So everybody is very eager, enthusiastic about getting the vaccination, and they are motivating, and everybody asks. And now the TikTok, or maybe whatever social media the youngsters are using, everybody, I'm vaccinated, I'm vaccinated. Are you? So this is the hashtag going on over here. So I would like to give the message to everyone in India: please get vaccinated as fast as you can, because एब्सोल्युटली। अगर ये सब टाइमली सब लोगों ने कर लिया होता, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मार्च से स्टार्ट करा दिया था और अप्रैल से अब 45, लेकिन एज माय हस्बैंड इज इन मीडिया, सो ही हैज जस्ट इन्फॉर्म मी डे बिफोर yesterday that Anjum, I was telling कि थोड़ा uneducated country है हमारी, तो इसलिए लोगों को समझाना मुश्किल पड़ रहा है. But he has informed me that some data is revealing that even the health workers, only 37 to 38% health workers got vaccinated, because they themselves have the question mark in their mind. So अगर हम फील्ड में होकर, साइंटिस्ट होकर, मेडिकल होकर, हेल्थ केयर वर्कर्स होकर भी अगर हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क है, तो जनता को समझाना, भैया मोदी जी का काम, मोदी जी के बस का कैसे हो सकता है, आप सुनो.
दोस्तों, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो अंजुम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही है। हालांकि ये हमारी हमारी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है आज का, लेकिन उसके बावजूद अंजुम ने क्योंकि ये शब्द कहा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको रिआइटरेट करूं। अंजुम ने जस्ट कहा कि यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एक बहुत बहुत ही छोटी लेकिन एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। और अगर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बस ये जरूरी है कि ये वैक्सीन लगवाना न सिर्फ हमारे लिए जरूरी है, आई थिंक ये लगवाना वो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिससे हम आने वाले टाइम में मिलने वाले। दिस इज फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, मैं राइट यहाँ अंजुम? पर एक कमिंग बात बैक। और कहना चाहूंगी जी नितिन, जी। मेरा हाथ जोड़कर सबको निवेदन है कि जो भी लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अगेंस्ट द वैक्सीनेशन, वो अपने एक घर पे सेफ एंड साउंड बैठे हुए हैं और उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया है ना, हम नहीं लगवाएंगे, या ये पॉलिटिकल पार्टी की वैक्सीन है, या वॉट एवर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं, एक एक कमरे में छह छह लोग एब्सोल्युटली। रहते हैं, वो बहुत कंजस्टेड जगहों पर रहते हैं। आप तो कहकर बड़े बिल्कुल सेफ एंड साउंड बैठे हुए हैं अपने कमरे में, अपने बिल्कुल विला में, अपने बिल्कुल फार्म हाउस में, लेकिन आप बिल्कुल। जनता का सोचिए, वो आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं आपके स्टेटमेंट्स को, जो कि उनकी जी जान के लिए। और वो सब हम देख ही रहे हैं, नंबर्स कितने हाइप अप हुए, कितने ऊपर गए। तो इसलिए प्लीज आप लोग अपने बाकी सारे एजेंडास को साइड में रखें। इस वक्त इंसान की जान की कीमत बहुत ज्यादा, और क्योंकि मेरी ये सेकेंड लाइफ है, मैं मौत के मुंह से खुद वापस आई हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या होता है फैमिली के ऊपर और क्या होता है उस इंसान के ऊपर जब मेडिकल साइंसेज उनकी हेल्प नहीं कर पाते, और जब डॉक्टर्स के हाथ खड़े हो जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें या इनके साथ क्या हो रहा है। सो एब्सोल्युटली। इट्स अ वेरी हॉरिफाइंग सिचुएशन। प्लीज ट्राई टू, आई प्लीज कंप्लीटली एग्री। एक्ट इंटेलिजेंटली, इंटेलेक्ट बनिए, और इंटेलिजेंटली अगर आपकी कोई 5 लोग भी बात सुनता है तो आप उसको समझाइए, रादर कि ठीक बात। आप कुछ भी स्टेटमेंट देकर आप तो अपने घर के कुकून में अपने आप को बंद करके सेफ एंड साउंड या बैठे हुए हैं, और आप जी जनता को कुछ भी बोल रहे हैं। सो जी। दैट्स माय अब हम्बल देखिए, रिक्वेस्ट। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, आप सब ये बात इस वक्त समझ सकते हैं कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर अंजुम वहां यूएस में बैठे इस बात को उठा रही हैं, तो ये जब व्हेन शी इज वाचिंग ऑल ऑफ दिस ऑन टेलीविजन, हर हर हस्बैंड इज इन मीडिया, और जब वो इस बात को जान रही है, इस बात को समझ रही है, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन, राइट, फॉर हर ओन कंट्रीमेन, फॉर हर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट्स they are suffering, or क्यों? Because of some people sitting with whatever mindset that they are in against the vaccination, any which ways. uh, right, let's move ahead on this, Anjum. By the way, a lot of people have joined us right now from different parts of the country. तो Anjum, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब वो जो पीरियड था आपका, जब आपको पैरालिटिक अटैक हुआ और आप यू वर बेड रिडन, आप बहुत हेवी ट्रीटमेंट पर आप थी, क्या चल रहा था आपके माइंड में उस वक्त? और क्या तब भी आप उसी स्ट्रॉन्ग माइंड से सोच पा रही थी जिस स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आप एक जिमनास्ट थी, या जिस तरीके से आपने अपने आप को हमेशा कैरी किया? या वो जो लोवेस्ट पॉइंट था, तब एक बार के लिए दिमाग भी आपके ऊपर हावी हुआ, वो नेगेटिविटी हावी हुई? मैं जानना चाहता हूँ आपके माइंडसेट कैसा था उस वक्त? Throughout the pregnancy, because after 2.5 months of pregnancy, the condition have started suddenly one day, and within a week I was totally bedridden. इतना फास्ट हुआ कि समझ में नहीं आया हुआ क्या है। पहले तो मुझे भी खुद लगता था कि क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, या मैं अटेंशन सीकिंग हो गई हूँ, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब कंडीशंस खराब होती चली गई, और बाय 3.5 months now everybody accepted कि okay, something is going on, something bad is going on, and then वहां से फिर डॉक्टर्स एंड फिर टेस्टिंग एंड ऑल। और 4.5 महीना, 1 महीने के बाद ही 4.5 महीने तक सब मेडिकोस के एक्सपर्ट्स के हाथ खड़े थे, और उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ द बेबी, some nerves are under compression right now, so let it be like that only, doesn't matter the pain है कुछ भी है, we will try कि हम आपको जितना comfort कर सके, और ज़्यादा क्योंकि medicines भी नहीं दे सकते because of the baby's health, तो you have to bear, so pain tolerance वैसे भी बहुत थी, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गई, बट एक खुशी थी कि एक बेबी आने वाला है। वहां तक की जर्नी तो मैंने फिर भी ठीक है, पेन होता था, रोती थी, सब कुछ होता था, लेकिन फिर भी मेरा मेंटल स्टेट ठीक था, नेवर माइंड। और मेरी मदर, शी इज ऑल्सो हॉकी प्लेयर, शी हैज रिप्रेजेंटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी,
आईपी कॉलेज से, वो गोल्ड कैप्टन थी हॉकी टीम की, हस्बैंड भी जिमनास्ट थे, तो हमारी पूरी टीम मतलब हमारी पूरी फैमिली एक टीम की तरह फाइटर थी, तो सब ठीक है, जी ठीक है, ओके फाइन। जी और मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट, शायद ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी नितिन, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी किताब लिखने के दो कारण थे। एक, आई हैव डेडिकेटेड दिस बुक टू माई डॉटर आफ्टर हर एंगेजमेंट, टू माई डॉटर एंड माई सन इन लॉ। और सेकेंड, इस बुक को लिखने का ये कारण था कि मैं लोगों को बताना चाहती थी, अगर कहीं इस तरीके से किसी भी मेडिकल कंडीशन में फंस गए हैं, तो प्लीज़ दे कैन कॉन्टैक्ट मी और दे कैन लर्न फ्रॉम माई जर्नी। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होती, अगर मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती, तो शायद मैं बेड से नहीं उठ पाती। बिकॉज एज आई एम टेलिंग यू, प्रेगनेंसी तक तो ठीक था, क्योंकि एक उम्मीद थी, क्योंकि हर डॉक्टर वॉज, एवरी डॉक्टर वॉज सेइंग कि बेबी की वजह से है, तो जब बेबी डिलीवर हो जाएगा यू विल बी ऑल फाइन। सो एक उम्मीद थी। लेकिन व्हाट हैज हैपेंड कि आफ्टर डिलीवरी आई हैव गॉट ब्यूटीफुल डॉटर, और मुझे डॉटर ही चाहिए थी। मतलब एक दो बार किसी किसी से मेरा वो भी हुआ वास्ता कि वाई यू वांट डॉटर, ऐसे नहीं, मुझे डॉटर ही चाहिए, बिकॉज उनको ड्रेसअप करना, उनके साथ एक अलग रंगीन दुनिया होती है, और बॉयज को पालने में कोई ज्यादा मजा नहीं है। boys is they, the only सॉरी टू best thing से, that you can do with boys is this. Okay. मतलब बहुत उनकी सोबर सी लाइफ होती है, कोई ज्यादा फैशन नहीं होता है, कुछ नहीं। और आई वाज वेरी हैप्पी गो लकी वुमन। तो इसलिए मुझे डॉटर ही। और मेरी मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको देखते ही बोला, लुक जापानीज डॉल हुई है, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो आई वाज हैप्पी, सब लोग खुश थे कि चलो थ्रू। अब यहाँ से जब 40 days हो गए, 2 months हो गए, 3 months हो गए, आई एम इन सेम कंडीशन, नो रिकवरी। मसाजेस हो रही हैं, आयुर्वेदा के इतने लिटरेचर मेरी मदर ने पढ़ डाले और मैंने पढ़ डाले कि ये वाला काढ़ा बना लेते हैं, ये वाला ऑयल बना लेते हैं, गेटिंग ऑल द मेडिसिन, सारी वो जड़ी बूटियाँ, सब कुछ करना हमने शुरू किया। और कहा जाता है, ये एक स्टेटमेंट होती है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कोई बीमारी लगती है, तो वो अगर विद इन 3 months चली जाए, यू आर थ्रू विद दैट, अदरवाइज वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रह जाती है। नाउ आफ्टर जी द 3rd month यहाँ से ब्रेकडाउन शुरू हुआ। मदर ने तो मुझे नहीं शो किया उनका कितना ब्रेकडाउन चल रहा था, ना मेरे हस्बैंड ने, लेकिन मुझे अपना पता है कि यहाँ से मुझे लगने लगा कि मैं इतनी प्यारी डॉटर मैंने मांगी, भगवान ने वो भी दे दी, पर इसको मैं पालूंगी कैसे, हाउ आई एम गोइंग टू इसको बड़ा कैसे करूंगी अगर मैं इस कंडीशन में रही तो। सो वहाँ से आफ्टर 4.5 months, दैट वाज, यहाँ पर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन था। आई क्राइड अ लॉट, मैं पूरा दिन और 2 दिन रोती रही कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे चलेगा। और वहाँ से आई हैव लर्न द लेसन, क्योंकि हमें अभी तक ये सिखाया गया था, हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड, यू नो। नाउ यहाँ पर अब बॉडी ही हेल्दी नहीं है, अब क्या होगा। सो यहाँ से मेरी स्टेटमेंट चेंज हुई, मेरी लाइफ की लर्निंग चेंज हुई, दैट हेल्दी माइंड कैन कीप हेल्दी बॉडी। बिकॉज मेरे absolutely पास सिर्फ माइंड था, जहाँ से मुझे अपनी बॉडी के एक एक नर्व्स को, एक एक सेल को ये मैसेज देना था, यू हैव टू गेट अप, यू कांट लाई डाउन लाइक दिस। हो गया, प्रेगनेंसी टाइम था, सबने निभा दिया, मेरी फ्रेंड्स ने निभाया। one of my friend Pooja, she's from my LNIP ग्वालियर। हम 30 लड़कियां थी, 70 लड़के थे, और हमारा पूरा ग्रुप आज भी बहुत क्लोज knitted है, स्पेशली द गर्ल ग्रुप। हम लोग आज भी एक दूसरे के साथ हैं आफ्टर 30 years, thick and thin every time. She has left her job. She was doing her job in Dehradun, and she has left her job because my mother was also working in State Bank of India to help me out. तो 3-4 महीने पहले उन्होंने ऐसा किया कि 2-3 महीने वो जॉब करती थी, छुट्टी लेकर आती थी, फिर मेरी मदर इस तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया, और लास्टली उसने बोला मुझे जॉब नहीं करनी, आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू बी विथ हर, एंड शी हैज लेफ्ट हर जॉब। सो मेरी एक और फ्रेंड है मधु, शी इज मतलब थ्रू आउट द लाइफ शी वॉज द टीचर इन अमेरिकन स्कूल, अमेरिकन एम्बेसी का जो स्कूल है चाणक्यपुरी।
वो और उसके हस्बैंड शाम को आकर मेरे पास इतना समय, मतलब वो समय की कीमत मैं किसी की नहीं लौटा सकती, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट करने के लिए शाम को आना, किचन में खुद उसके हस्बैंड जिनको हम जिया जी बोलते थे, कुछ कुछ बनाना, मुझे खिलाना क्योंकि मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता था, आज ये वाली चटनी बना दे। तो ये सब मैं नहीं भूल सकती। उस समय जितने लोग मेरे साथ थे, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने सारा सपोर्ट सिस्टम था। सो वहाँ Brilliant. से मुझे जब ये सब हो गया कि ठीक है, वो तो वक्त सबने निकाल दिया मिलकर, अब क्या, अब 20 25 30 साल जब तक बच्चे को मैंने बड़ा करना है, अगर मैं मूव नहीं करूंगी तो कैसे। तो वहां से फिर मेरा अपने आप को समझाना, शाम तक अपने आप को प्रिपेयर करना, दैट आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू क्रॉस दैट डोर, आई हैव टू सिट आउटसाइड, मुझे वहां तक खुद चलकर जाना है, खुद उठना है। और मुझे आज भी मैं फिर कहूंगी, मुझे फिर से यहाँ बाइसेप्स में मेरे पेन शुरू हो जाता है जब मैं ये नरेट करती हूँ। द फर्स्ट एक्सरसाइज कि अपनी बेटी की छोटी सी क्विल्ट जब मैंने तय की थी, फोल्ड किया था, उसको लिफ्ट करने में मेरे को जो पेन था वो आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ वेन एवर आई नरेट दिस इंसिडेंट। सो आपके न्यूरॉन्स में ये बस जाता है। सो आई ऑलवेज टेल, मैं अपने लेक्चर्स में बताती हूँ, हर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, hippocampus and amygdala. Hippocampus is correlated with your traumatic episodic memory, and amygdala is, your present episodic memory. So मेरे hippocampus में it is so deep rooted that each and every month, every week, जो वो मौसम चलता है ना, तो मुझे वो कोरिलेट होता है कि इस समय मैं ऐसा थी, इस समय मेरे साथ ये हुआ था, उस समय मैं, मेरे को हॉस्पिटल लेकर भागे थे, मेरा इंजेक्शन रिएक्ट हो गया था, आई गॉट फेंटेड, और सारी रात वो जो थी बहुत भारी थी सब लोगों पे, आई हैव सर्वाइव्ड दैट नाइट आल्सो। सो ये सारा जो है इट इज स्टिल विद मी। So this is really, I mean, absolutely, it is very inspiring to see your journey. Friends, everybody who is connected with us right now, how has he been so far? अभी तक जो आप अंजुम को सुन रहे हैं, इनकी स्टोरी को आपने सुनना, इनकी जिस जिस मुश्किल दौर से इन्होंने इनका इनका जीवन बीता, जिस मुश्किल दौर से इन्होंने दिनों जैसा वक्त इन्होंने काटा, लेकिन with God's grace and with the power of mind, everything is fine now. Everything is beautiful. Your daughter is happily married. You are in US with her right now, and you're all healthy. You're all fine, and you look beautiful right now. So I'm sure everybody who's listening to us right now must be inspired by your story. तो अंजुम, चलते हैं थोड़ा सा डीप इस पावर पावर ऑफ माइंड को समझने के लिए। ये पावर ऑफ माइंड क्या है, और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं? क्या हम चीजों को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम अनथिंकेबल चीजों को अचीव कर सकते हैं? क्या हम कुछ, व्हाट इज दिस पावर ऑफ माइंड एंजल? क्या 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 कहना है आपका इस पर? या मेरा फर्स्ट चैप्टर ही यही है, पावर ऑफ मी, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। जो भी यूनिवर्स की पूरी ताकत है वो यूनिवर्स ने हमें दे रखी है। सो अनथिंकेबल तो जरूर पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इज ऑलवेज पॉसिबल, नहीं तो इतनी सारी साइंस जो है इनोवेशंस नहीं कर पाती। आज हम आकाश में उड़ पाते हैं, अब तो हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। तो इतनी सारी इनोवेशन तभी है जब किसी ने अनथिंकेबल, इम्पॉसिबल को सोचा कि क्या ये पॉसिबल है, और जब वो उसको जुनून के साथ लग गया तो वो पॉसिबल हो गया। तो ऑफ कोर्स माइंड इज द मार्शल एंड मार्शल द माइंड, ये मेरी मम्मी बचपन से हमें बोलती थी, और इसीलिए मैंने अपनी बुक का नाम मार्शल द माइंड रखा, बिकॉज here you need to use, to control the power of your mind. You have every power, but you have to think. और मैं नितिन बता दूं, सिर्फ किसी को जब कोई दुखी होता है या किसी परेशानी में है, उसको सिर्फ ये कहना बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, ऐसा नहीं होता। you the person has to begin his journey, from that point. Because बहुत बारी मेरे पास जब आई एम वेट लॉस स्पेशलिस्ट, तो 128 किलो की लेडी, 135 किलो की लेडी, 118 kg की, जब वो मेरे पास आए और उनको 40 किलो का टारगेट पता है, बॉडी मास इंडेक्स आजकल हर कोई समझ जाता है, तो उनको एकदम से उनका दिल ही छूट जाता है कि इतनी लंबी जर्नी कैसे पॉसिबल है, 2 किलो तो घट नहीं रहा, 4 किलो तो घट नहीं रहा। सो वहां में हमेशा उनको, जितने भी मेरे रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज बिकॉज आई ट्रेन देयर माइंड, I train their subconscious mind.
if you want any success, you have to control your mind and feed your subconscious mind what do you want and be prepared to do 100%. That is another mantra. अगर आपने बस सोच लिया, जिसे कहते हैं ना शेख चिल्ली के या मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने तो सब देख सकते हैं, लेकिन पूरे किसी किसी के होते हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे आर लकी, it's because it's a constant journey, and in that journey you get failures also, but from those failures there is no word like failure. फेलियर कुछ नहीं होता है, फेलियर एक्सपीरियंस होता है भाई। या तो वो आपको कुछ सिखाएगा या वो आपको आगे बढ़ाएगा। यही लाइफ का मंत्र है। सो आई मस्ट टेल एवरीवन, फेलियर शब्द तो आप लोग अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। अगर आप कहीं पर लड़खड़ा गए हैं, कहीं गिर गए हैं, कोई स्टेप बैक लेना पड़ रहा है। yesterday also here, यहाँ पर भी बच्चे हैं, फ्रेंड्स आते रहते हैं बच्चों के। तो yesterday also I was telling someone and he said, auntie you have rightly quoted it, कि आपको अगर अगर फेलियर लग रहा है तो वो आपको कुछ एक्सपीरियंस देकर जाता है। एंड सम टाइम लोगों की मिस्टेक क्या होती है बिजनेसेस में, बिकॉज मैं अब एंटरप्रेन्योर्स के मेंटोर हूँ। आई एम टेलिंग एवरीवन हाउ टू सेट द वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस बिजनेस, न्यूट्रिशन कैसे, न्यूट्रिशनिस्ट का पूरा बिजनेस कैसे हम चला सकते हैं इंटरनेशनली। और कोविड ने तो हमें सिखाई दिया ऑनलाइन। It's quite easy now to the whole world can take the expertise from anyone. So I was telling him yesterday that uh, कई बारी हमें आगे बढ़ने के लिए पीछे लीन होना पड़ता है, और स्पोर्ट्स में तो ये सिखाते हैं। अगर 100 मीटर्स सब लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 100 मीटर हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना। सो उसके लिए जब वो स्टैंड्स लेते हैं तो हमें अपना पूरा वेट जो है पीछे की तरफ रखना होता है, सो दैट यू कैन एक्सेल। सो इफ यू वांट टू एक्सेल, तो ये आपको कई बार स्टेप पीछे जो लेना होता है वो आपके एक्सेलरेशन के लिए है। So learn from your mistakes. I won't say learn from your failure. I would say learn from your mistake. Analyze that. So माइंड को अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा हटा कर रखेंगे, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा कर रखेंगे, तो आप उस किसी भी जर्नी को आप कंप्लीट कर You सकते हैं। very rightly said. You very rightly said that, अंजुम, कि एक बार you need to take that step back, right? एक एक छोटा सा एग्जांपल है। आप अगर गुलेल की भी आप बात करें, अगर आपको दूर जी तक गुलेल फेंकनी है तो आप क्या करेंगे, राइट? सो जी you have to really stretch it as far as possible. चलिए, या तो ये बिल्कुल आपने सही कहा अंजुम। ये एक ऐसा वक्त है जब हर जगह businesses are being affected, या health, mental health is being affected, people are staying at home, it's not easy. और आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को, they're not able to go out, and not everybody has the luxury of having a garden in their house wherein people can play, or maybe a rooftop wherein people, their children can go and play. छोटे छोटे घरों में लोग हैं, कैद हैं। एक मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है। कुछ कुछ अगर उनके बिजनेसेस हैं तो वो इम्पैक्ट हुए हैं। अगर जॉब्स में है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। नाउ वर्क फ्रॉम होम इज it's like 10 times more difficult than you when you work from office, because घर वालों को ये पता नहीं चलता कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो दिस लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर। अच्छा, इस दौरान इफ इट्स आज की तारीख में ये तो है ही नहीं कि किसी का रिलेटिव या किसी का जानकार कोविड से अफेक्टेड ना हुआ हो, या किसी ने किसी अपने को ना खोया हो। तो ऐसे टफ टाइम के अंदर क्या मैसेज है अंजुम आपका? क्या कहना चाहते हैं आप ऑडियंस को? आई एम श्योर जो लोग भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप कि इस दौरान यहाँ यहाँ क्या चलना चाहिए? इसमें क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और अंदर क्या एक चलना चाहिए इंसान के, ताकि इस वक्त को वो पार कर सके, और ये वक्त उसका अंदर डीप लेवल पर कुछ बिगाड़े ना? क्या कहना चाहती हैं? दिस टू शैल पास। वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त को गुजारे कैसे, that's very important. This is the time you have to be more knitted emotionally. व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे साथी लोग हमसे छूट रहे हैं। द टाइम इज वेरी टफ, सो इमोशनली हमें कनेक्ट रहना है। एंड इस टाइम पे ग्रीफ पीरियड जो है हमारा, अगर इफ यू आर लूजिंग समवन, तो उसको इस टाइम पे नेचुरल है, कोई ज्ञान जो है काम नहीं आएगा नितिन। बट जो रह गए हैं
जिनका जो सर्वाइवर्स हैं उनको मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। और मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मोदी जी को कि अगर मेंटल हेल्थ पे अब जो है फोकस, जैसे अभी सिलेंडर्स की कमी थी या जो भी हमारे साथ रहा, कमियां रही, आने वाले वक्त में बहुत सारे मेंटल हेल्थ वर्कर चाहिए होंगे, बिकॉज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, उनको उनको ग्रीफ पीरियड नहीं मिला। इन साइकोलॉजी हम कहते हैं ग्रीफ पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्री विच कैन लास्ट 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 3 इयर्स। लेकिन जी, यहाँ पर जो सर्वाइवर्स हैं नितिन, वो ये सोचते रहेंगे अब जिंदगी भर, गलती कहाँ हुई, क्या मैं कुछ और कर सकता था, क्या मैं बचा सकता था, क्या मैंने ये डिसीजन गलत लिया, क्या 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना अब, ये हमारी पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करने वाला है। द गिल्ट, बिल्कुल। पीपल विल लिव इन गिल्ट नाउ। सो ये एक साइकोलॉजिस्ट ही हम समझ सकते हैं कि क्या आने वाला है तूफान। अब लोगों के दिमाग में जो तूफान अब आने वाले हैं या चल रहे हैं, वो और ज्यादा लोगों की हेल्थ को लेटर ऑन इनके इम्पैक्ट आएंगे। अभी देखना, अभी 1 साल 2 साल बाद तक ये इम्पैक्ट्स आएंगे, क्योंकि ये तो चला जाएगा, इसको तो अब हम कंट्रोल कर लेंगे। अब चाहे थर्ड वेव कह लीजिए, फोर्थ वेव, वंस द वैक्सीनेशन इज आउट, हम उन सबको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो छूट गया इसमें, जो चले गए, उसका जो ग्रीफ है वो बहुत लंबा चलने वाला है। बिकॉज इसके भी रीजन है साइकोलॉजिकली। लेकिन हम लोग जो रिचुअल्स करते हैं उनके मायने होता है। लोगों ने डेड बॉडी नहीं देखी, क्योंकि 3 लोग 4 लोग अलाउड थे सिर्फ घर वाले जाने के लिए, लोग पहुंच नहीं पाए, इट इज नॉट अलाउड, लॉकडाउन लगा हुआ है। हमने गुड बाय नहीं कहा, हमने ग्रीविंग फैमिली के साथ वक्त नहीं बिताया। ये क्रिया करना, 13 दिन का शोक मनाना, गरुड़ पाठ, जितने भी रिचुअल किसी भी रिलीजन में है, ये ऐसे ही नहीं है। ये टाइम देते हैं इंसान को रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी नहीं है। हमें सिर्फ, हमने मैसेज पे हमें बस पता लगा, अच्छा हमारा अब ये साथी जो है कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या किसी फैमिली का, वो चला गया। लेकिन अभी रियलाइजेशन नहीं है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वापस हम कॉलेज पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, फैमिलीज मिलेंगी, एंड देन पीपल विल रियलाइज कि फैमिली में से वो मेंबर नहीं है। सो द ग्रीफ पीरियड जो है वो बहुत लंबा होने वाला है, और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और सभी को इसलिए एक दूसरे से इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो रहनी चाहिए। और आपस में बात ज़रूर करें, अवॉइड ना करें। कई बार ये भी होता है कि किसी की डेथ हुई है तो हम बात इसलिए नहीं फ़ोन करते कि वो और दुखी होगा। लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द लोनलीनेस, कि वो घर के अंदर है, अकेला है, कोई फैमिली मेंबर साथ में नहीं है, और फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट सिस्टम होते हैं, लेकिन वो सब नहीं है, कोई रिचुअल नहीं हुआ, कैसे कैसे लोगों ने क्रिया की है, अंतिम संस्कार किया, सब लोग देख ही रहे हैं। सो वो जो गिल्ट रहने वाला है, जो ग्रीफ रहने वाला है, वो हमारी पूरी सोसाइटी में ज़्यादा रहने वाला है। कहीं रही बात फाइनेंशियल्स की और बिजनेस की, जो ड्रॉप डाउन हुए हैं, यस इट इज़ अ वेरी टफ टाइम फाइनेंशियली ऑल्सो, बिजनेस को वापस खड़ा करना। और आप और हम लोग तो समझ ही सकते हैं कि किसी भी चीज़ को खड़ा, मतलब बिल्कुल एस्टैब्लिश करने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये जो भी हुआ इतना फास्ट हुआ है कि इसको संभालने का टाइम नहीं मिला। नेचुरल है, लोगों के पास इतना खजाना तो नहीं था, जितना भी था वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ठीक है। मेंटली हमें, लेकिन फिर से देखिए, एक साइंसिस्ट ने ये कहा, डाटा ने, कि हर 100 साल बाद महामारी आती है। हमने बड़ी सारी पुरानी मूवीज देखी थी जहाँ प्लेग हो जाता था, लोगों ने पूरे पूरे गांव जला दिए और फिर आगे गए। ह्यूमन स्पीशीज हैज टू सर्वाइव। वी विल बी ब्लेस्ड अगर हम बच जाते हैं, तो वी विल बी ब्लेस्ड। तो अपनी सोसाइटी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। थोड़ी भी इस टाइम पे हेल्प एक दूसरे की बहुत बड़ी साबित होगी। और ये वक्त निकल जाएगा, इसलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो बिजनेसेस हो, फाइनेंसेस हो, इमोशनल हो, क्योंकि दैट्स अबाउट द ह्यूमन।
That's why we are, different than other species. So we should come together. Absolutely, absolutely. Absolutely, absolutely. Well, friends, everybody who is connected. By the way, before I say that, Anjum, you have very rightly mentioned, this thing कि ये जो ग्रीफ पीरियड है और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये जो अभी नुकसान हुआ है लोगों का, ये अभी इसका इसका असर धीरे धीरे सामने है. People, Realization. this there'll be this realization will come in due course of time. Well, friends, thank you very much for connecting with us today. I am live right now with none other than the number one best-selling author of the book Marshal the Mind. The author's name is Dr. Anjum Padiyar. She is live with us from US. It's early morning there, and she was really kind enough to accept the invitation and join us today. In case any one of you have any question that you want to ask Anjum, do not hesitate to put that in the chat box. I'll be happy to take your questions and present it to Anjum and get the answers for you. Anjum, one of our participants right now, Omkar, has a question. He's saying, please tell me more about how to increase the power of mind. क्या हम पावर ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए क्या कोई तरीका, क्या कुछ हम कर सकते हैं? बिल्कुल. सबसे पहले तो हम योग पर चलते हैं. You can achieve anything. You can marshal the mind. You can increase the power of your mind. You can achieve anything through yoga. योग में meditation or yogasana both are very important. So what I recommend, 40 minutes of yoga and 20 minutes of meditation. This is the minimum required. 24 hours में repeat, because अगर हम asanas को discuss करें, so सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है नितिन? People have fear and lack of confidence. पावर क्यों बढ़ाना है हमने माइंड का? क्योंकि हमें लगता है हम ये करना चाहते हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं है. हमें फेलियर का फियर जो है वो पहले ही आ जाता है. और कुछ मैं चाहूंगी ये सोसाइटी की भी हमारी अब प्रॉब्लम होगी. इंडिया में पेरेंट्स एंड टीचर्स सब नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं या फीड करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में फियर ज़्यादा दे देता है. If you do the analysis of our society mindset, everybody want a government job. क्यों चाहिए भाई? सिक्योरिटी है. एंड सेकंड, काम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. कैन यू सी दीज टू स्टेटमेंट्स? Yeah. We don't want to become entrepreneurs. क्यों? रिस्क है, फियर है. सो आप अपनी सोसाइटी का माइंडसेट को देखिए. ऑब्जर्व पीपल, हाउ दे, व्हाट दे टॉक अबाउट, व्हाट दे वांट. उनका एम क्या है? बहुत ही लो एम है. लोगों तो कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है, मैं सिंपल सी बात ओमकार जी को बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना. यस, वी वांट टू डू दिस, नो वरीज, कोई फियर नहीं है, कुछ नहीं होगा. क्या होगा? 2-4 महीने खराब हो जाएंगे शायद इन अ लर्निंग प्रोसेस. हमारे घर में से कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया. हमारी तो जॉब फैमिली है, सर्विस क्लास फैमिली है. बट इस कोकून से बाहर निकलना पड़ेगा. सो वीरभद्रासना, सिंपल सा एक आसना बताती हूँ. वीरभद्रासना, नाम में ही वीरता है. सो इफ यू टेक दैट पोज, दैट्स अ चेस्ट ओपनिंग पोज, यू इनहेल मोर एंड मोर ऑक्सीजन. प्राणा की बात योग में हमेशा से होती रही आई है. 5000 साल पुरानी साइंसेस हैं, लेकिन आज हमें लगता है नाउ वी आर वरी अबाउट द लंग कैपेसिटी. इस वक्त सबको समझ में आ रहा है कि लंग कैपेसिटी कितनी ज़रूरी थी, जो कि फिटनेस, योग, एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज से हम इसको बढ़ा के रख सकते थे. बट द हेल्थ इज सो डिटेरिएटेड. प्री कंडीशंस जिनके साथ थी उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो हम बहुत इजीली एक ही. और एक सबसे बैड स्टेटमेंट जो हमारे इंडियंस का रहता है, एक ही जिंदगी है मैडम जी, खा पी कर ही जाएंगे. अरे नहीं, जाना भी इतना आसान नहीं है. खा पी कर कैसे जाएंगे? अब आपकी जितनी प्री कंडीशंस थी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सबसे ज्यादा नुकसान डायबिटीज वालों को हुआ. डायबिटीज इज टोटली कोरिलेटेड विद योर ईटिंग पैटर्न. और फिर कितने बड़े लॉसेस हम लोग सह रहे हैं इस समय पे. सो इसलिए अगर हम माइंड की बात करते हैं तो ईटिंग पैटर्न के लिए भी हमें माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. नहीं खाना, ये चीज़ अनहेल्दी है, अवॉइड करनी है. लोगों को इतनी आदत हो जाती है
कि वो उस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। डेली अगर बर्गर खाना है, बच्चों की बात कर रही हूँ, चाउमीन खाना है, व्हाटएवर, सो उन्हें डेली चाहिए। आई एम नॉट सेइंग साधु संत बन जाइए, लेकिन कोई एक लिमिट तो रखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी। सो वीरभद्र आसना जो है, अगर आप उसको डेली परफॉर्म करते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी, आपके अंदर इतना प्राणों का संचार होता है दैट यू बिकम करेजियस एंड कॉन्फिडेंट। नाउ कम टू Wow. द फोकस एंड कंसंट्रेशन। किसी भी Wow. काम करने के लिए हम हाफ वे थक जाते हैं या छोड़ देते हैं। सो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एनर्जी लगती है। फोकस में बॉडी एनर्जी को यूज नहीं करती। फोकस क्या है, मे बी अभी आपके और मेरी बात सुनने में लोगों को थोड़ा सा फोकस सुना, ओके, और आगे उनसे आधे घंटे बाद पूछेंगे अच्छा क्या क्या बोला, तो वो आधी बातें हमारी रिटेन कर पाएंगे, आधी नहीं। सो फोकस में हम एनर्जी नहीं लगाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली कॉन्सेंट्रेशन में हमारी बॉडी की एनर्जी लगती है। सो यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी टू कम इनटू दैट कॉन्सेंट्रेशन फेस। सो उसके लिए अगेन जितनी भी हमारे योगासनास हैं उनका को रिलेशन होता है हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करने का, हमारे सिस्टम्स को इम्पैक्ट करना पॉजिटिवली। एंडोक्राइन सिस्टम का मैं बड़ी फैन हूँ, बिकॉज मुन्ना भाई एमबीबीएस में बड़ा एक अच्छा सा डायलॉग था, ये केमिकल लोचा है। एग्जैक्टली योर बॉडी, इसमें इतने केमिकल्स हैं और इतने केमिकल्स की उथल पुथल होती है कि हम लोगों को पता भी नहीं होता। लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट द हैप्पीनेस थ्रू योगा, मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। सो व्हाट हैपेंस, आप खुश कैसे रह सकते हैं? ऐसे नहीं रह सकते कि नितिन खुश हो जाओ, नितिन एक लाफ्टर चैलेंज देख लो, तुम्हें खुशी हो जाएगी। नहीं, देयर आर द रिसर्चेस विच स्टेट कि 20 मिनट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सेशन और 1 घंटा लाफ्टर चैलेंज टाइप कोई भी शो, there was no significant changes in the happy hormones, whereas 20 minutes of mindfulness meditation have increased the happy hormones. So Wow. people are underestimating the fitness and exercise regime. They are not following anything. सुनते सब है बाबा रामदेव को, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। That's the problem. You have to follow it. So to improve, अगर आपको अपना टफ माइंड चाहिए, मेरी अगर पहले स्टेटमेंट ओंकार जी ने सुनी हो, मैंने क्या कहा था, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होती तो मैं बेड से खड़ी नहीं हो सकती थी, मैं ठीक नहीं हो सकती थी। दैट इज द लैकिंग इन Good. द सोसाइटी। Absolutely. आप I completely agree. और I hope ये ओंकार जी को उनका आंसर मिला होगा. If yes, you can put that yes in the chat box. और दोस्तों देखिए, अंजुम, right now I'm fortunate enough to be in the company of one of the most knowledgeable women that I know in my life. She's थैंक यू। experienced, she's knowledgeable, she's a doctorate, right? तो आप um, अभी ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, ये जो आप अंजुम के विचारों को सुन रहे हैं, these are tried and tested ideas, and she is a visiting faculty. Like, she visits a lot of colleges, a lot of institutions, like a guest speaker. और आज ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथ में कि हम अंजुम को सुन रहे हैं और उनके आइडियाज से प्रभावित हो रहे हैं। अंजुम, एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहता हूँ अभी। स्वाति है, स्वाति त्यागी जी, इन्होंने कहा कि अंजुम जी, आपने कुछ समय पहले कहा था कि जब भी हम ये आपने बहुत जल्दी जल्दी में ये स्टेटमेंट कही थी अंजुम, कि जब भी हम अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन हमारी नजर जो है वो वही उस 40 किलो पर रहती है। तो इन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए और दिमाग को सेट कैसे किया जाए। ये आपका फेवरेट सबसे टॉपिक है जो मैं जानता हूँ, राइट? सो पीपल स्ट्रगल टू लूज वेट एंड मैं यू उसका डू भी रीजन दैट, बता राइट? देती सो हूँ। ये आपके लिए Because when I was gymnast, I was only 38, 40 kgs. When I got married, I was only 48 kgs. I was doing 8 hour. I was taking 8 hours aerobic classes. मेरे सेशंस होते थे रजौरी गार्डन में, मेरा बहुत ब्यूटीफुल और बड़ा सेंटर था। सो उस प्रेगनेंसी में क्या हुआ, सिर्फ पेन्स नहीं हुए, जो मूवमेंट खत्म हुआ उसकी वजह से आई हैव गेन 25, 27 kgs। नाउ नितिन, मेरे पास फाइट था, एक तो मूवमेंट मुश्किल, ऊपर से ये जो 27 केजीज था, वजन, वो जो कभी मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। बिकॉज आई टोल्ड यू 1987 से आई हैव प्लेड माय फर्स्ट नेशनल। तो जो जिमनास्ट 38 जी, किलो और 48 किलो में घूमता हो, उसके लिए 78 केजी 75 केजी वाज टू मच टू कैरी। अब फाइट ये थी कि एब्सोल्युटली। मूवमेंट करना है, फाइट ये थी ये 25-27 किलो घटाना है। नाउ आई कांट डू एरोबिक्स,
I can't even walk properly, I can't jog properly. So how to go ahead? And I told you, टीचर बनना था और स्पोर्ट्स टीचर बनना था, एरोबिक्स वाज माय स्पेशलाइजेशन। तो मैं कैसे किसी को एरोबिक्स कराऊंगी जब मैं उस हालात में नहीं हूँ? और अगर मैं ठीक होकर चलना भी शुरू कर दूंगी, उसके बाद मुझे, मेरा टारगेट था मुझे 25-27 केजीज घटाकर शेप में आकर वापस फिटनेस इंडस्ट्री में आना, बिकॉज दैट्स माय लाइफ, मेरा स्पेशलाइजेशन अंजुम, है। मैं यहाँ यहाँ 5 किलो घटाना इज अ बिग प्रोजेक्ट। आप क्या बात कर रहे हैं हाँ, 20-25 किलो घटाने की? अभी आई एम वी आर ऑल कीन टू नो मोर अबाउट दिस। तभी जब मैं जिम ट्रेनर्स को तैयार करती हूँ, सर्टिफिकेट कोर्सेज कराती हूँ, एरोबिक ट्रेनर्स को सर्टिफिकेट कोर्सेज कराती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ शक्ति भोग आटे की 5 केजीज की बैग लेकर अपनी थाई पे बांधो, 10 किलो ऐड हुआ, और चल के दिखाओ। और आगे भी बांधो और पीछे भी बांधो, देन यू कैन रियलाइज अ लेडी हु इज रिपोर्टिंग टू यू फॉर रिड्यूसिंग 20 केजीज, 10 केजीज और 15 केजीज और 5 केजीज, वो किस चीज से जूझ रही है, शी इज फाइटिंग। एब्सोल्युटली। बिकॉज दैट या आई हैव रियलाइज नितिन, मेरी पूरी जर्नी एक तरफ, और उस समय 25 किलो 27 किलो घटाना मेरे लिए क्या था, मैं समझ सकती हूँ। और दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, वो जो मेरा एक्सपीरियंस था आई टेक इट पॉजिटिवली, कि भगवान या यूनिवर्स मुझे जो किताबें नहीं सिखा सकती, वो प्रैक्टिकली उन्होंने मुझे सिखाया कि व्हाट इज ओवरवेट, ओबेसिटी क्या होती है। बिकॉज तब तक मैं वेरी फ्रेंकली स्वाति जी, मैं आपको बताऊं, तब तक मैं अपनी एरोबिक क्लासेस में बहुत चिल्ला चिल्ला के इंस्ट्रक्शंस देती थी, और मुझे लगता था ये लोग करना नहीं चाहती हैं, इनसे होता नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी ईजी फॉर मी, आई हैव नेवर रियलाइज्ड पुटिंग ऑन सो मच वेट एंड डूइंग द एरोबिक इज सो डिफिकल्ट। सो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ ओवरवेट ओबेस पीपल के लिए। वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ पीपल हु आर फाइटिंग थ्रू देयर माइंड, जो किसी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। इसीलिए फिर मैंने अपनी पीएचडी साइकोलॉजी में की। 10 साल मेरे को लगे पीएचडी करने में। आई हैव स्टडीड अ ब्रेन लाइक एनीथिंग, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली एंड यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर ओनली। सो वेट लॉस के ऊपर अगर हम आए, यू हैव टू टेक अ बेबी स्टेप, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, फॉर एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं, सो डू नॉट मिस योर जर्नी, डू नॉट मिस द बेबी स्टेप, डू नॉट ट्राई टू लीप। अगर हम 5 सीढ़ी एक साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं नीचे उतरने की बात नहीं कर रही, इट्स ईजी टू फॉल डाउन, इट्स ईजी, हम कूद कूद के 4-5 सीढ़ियाँ कूदते थे बचपन में, लेकिन अगर 5 सीढ़ी एक साथ चढ़नी है, हम नहीं चढ़ सकते। So for that, you have to set. Yes, you can take a leap of 2 steps, 3 steps, but not कि हम यहाँ से सीधा वहाँ पहुँच जाए. So it's a long journey. First of all, second, do not be unrealistic. कोई अगर आपको ये कहे मैं एक हफ्ते में, या मतलब हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, एक महीने में मैडम 10 किलो घटवा दीजिए, आपका बड़ा नाम सुना है, ऐसे मैं साइंस को चेंज नहीं कर सकती। एक हफ्ते में 1 पाउंड से 500 ग्राम से 1 या 1.5 किलो, ये कैलकुलेशन है। स्टार्ट योर जर्नी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बॉडी जो है एक वीक में 3 केजीज भी छोड़ सकती है, लेकिन वो बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगी। देयर इज नो, कोई चाबुक नहीं है जहाँ से डॉक्टर अंजुम जो है वो एक हफ्ते में 5 किलो रिड्यूस करा देंगे, ऐसा नहीं होता। एंड सेकेंडली, इफ यू गो फास्ट फॉर वेट रिडक्शन, बॉडी जो लूज होगी, जो स्किन लूज होगी, स्किन को टाइम चाहिए स्क्वीज होने में। एंड लास्टली माई मंत्रा इज, अगर 20 केजी या 40 केजीज है, नितिन, वो एक हफ्ते में नहीं गेन किया, दैट्स नॉट गेन इन अ वीक और 2 वीक्स। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा सेटल डाउन करने के लिए कहती थी, तुम्हें क्या लगता है कितने महीनों में ये वेट गेन हुआ है? देन दे से मैम 8 साल। आई सेड ओके, लेट्स वेट फॉर 8 मंथ्स एटलीस्ट। क्या हम अपने आप को एब्सोल्युटली, 8 मंथ्स दे सकते हैं? वेरी सो राइटली सेड। वहां से ये यही साइकोलॉजिस्ट का काम है। मतलब मैं इसीलिए अपनी साइकोलॉजी ज्यादा यूज करती हूँ वेट लॉस कराने में, बिकॉज मैं भूखे नहीं रखती हूँ। आई एम नोन फॉर इट कि डॉक्टर अंजुम जो है खिला खिला के पतला करती हैं, बिकॉज अगेन अ थ्योरी इज हियर। अगर भूखे रहने से हम पतले होते, तो फिर हमारे एंसेस्टर, हमारी दादी नानी और उनसे भी हमारे फोर फादर्स, वो मोटे नहीं होते, फिर तो मोटापा हमारे डीएनए में आता ही नहीं ना। क्योंकि उस टाइम तो बहुत बिल्कुल, चक्की से भी आटा निकाल रहे हैं, कपड़े भी वो हाथ से धोते बिल्कुल। थे, पानी के लिए भी स्ट्रगल करते थे, जो कि आजकल हम कितने कंफर्ट में हैं, तब भी
क्या हमारे एंसेस्ट्री में कोई मोटा नहीं था? बिल्कुल। इवन आप रोम की वो देखिए, मूर्तियां देखिए, पेरिस में आप देखिए, यूरोप में देखिए, जितनी हमारे ऐसे फिगरिन्स हैं हमारे, उनमें भी मोटापा दिखाया गया है। बिल्कुल। सो मोटापा तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बट इसको हम अगर प्रॉपरली सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली करें तो इट्स अ वेरी इजी जर्नी। जो मैं सबको 8 महीने बोलती हूँ वो 4 महीने में भी हो जाता है। और देयर वॉज अ वन लेडी जो 2 स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनका नितिन इतना एब्सोल्यूट रिजल्ट था 6 हफ्तों में कि जब मैंने न्यूज़पेपर में एड में उनका रिजल्ट दिया था तो मैंने उसको 8 हफ्ते किया था। आई हैव मेंशन 8 वीक्स क्योंकि मुझे लगा लोग कहेंगे इट इज अनरियलिस्टिक अनसाइंटिफिक, अनरियलिस्टिक। है। बट उनके साथ क्या था, मैं ये स्वाति जी को जरूर बताना चाहूंगी और लोगों को भी, वो हर तरीके से मान चुकी थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने आर्टिकल्स में भी लिखती हूँ, अगर आप ये मान चुके हैं मेरा कुछ नहीं हो सकता तो ओके, लेट मी गिव, प्लीज गिव मी अ चांस। बीइंग अ रिसर्चर आई वुड लाइक टू रिसर्च ऑन योर बॉडी, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ साइंस कहाँ फेल होती है। आर यू द एलियन बॉडी? और मुझे अभी तक एलियन बॉडी जी। 30 साल में मिली नहीं है। सो दोस्तों, उन अभी अंजुम, जस्ट टू पॉज यू फॉर अ सेकंड, इन केस सम ऑफ यू आर वंडरिंग कि अंजुम इस टॉपिक पर इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जो जो हर जगह से परेशान हुए। और स्वाति जी, आपके लिए खास कर ये बहुत ऐसे लोग जो परेशान हुए, जिन्होंने खूब पैसे खर्च किए वेट लूज करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो आए अंजुम के पास एंड दे अंडरस्टूड अ साइंटिफिक वे ऑफ लूजिंग वेट with some alignment here, right? So जब आप, जैसे कि अंजुम ने पहले भी कहा कि पहले हम कहते थे हेल्दी बॉडी है तो हेल्दी माइंड है, अब ये आप रिवर्सल है। आपका माइंड अगर हेल्दी है तो आप हेल्दी बॉडी में है। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको जरूरी नहीं कि भूखे ही रहना है, जरूरी नहीं है कि आपको 10-20 किलोमीटर रोज भागना ही भागना है। ये तो ये देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच। और ये अंजुम ने एक चमत्कार किए हैं बहुत ऐसे सेलिब्रिटी लोगों के साथ जो जो आज थैंकफुल है अंजुम के लिए। तो अंजुम, just I wanted to inform everybody how confidently राइट, we are able to speak on this topic, जी। राइट। सो बहुत, अब मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी बट यू कैन अंडरस्टैंड, 2-3 ब्रांड्स हैं जिम्स के हमारे इंडिया में। सो शी वाज फ्रॉम द वेरी एलीट क्लास, तो वो सारे जिम के ट्रेनर्स जो हैं, पर्सनल ट्रेनर, सब फेल हो चुके थे। और क्योंकि थायराइड इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, पीसीओडी ये सब विमेन में होता ही है, और ऊपर से ये स्ट्रेस दैट आई एम नॉट जी। लुकिंग अप्रोप्रिएट, and या every day she has to face the parents, she has to face a lot of students, या and कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था I am not idle, I don't look like an idol। मैं खुद में ही एक एग्जाम्पल नहीं बन पा रही हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलूँ, अपने टीचर्स को क्या बोलूँ। सो बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिनको हमने सॉर्ट आउट करना शुरू किया, एंड शी यूज्ड टू क्राई फॉर इनिशियली फॉर फर्स्ट 3 days कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा। आप फंस जाओगे, क्योंकि उनके हस्बैंड ने मुझे चैलेंज किया था कि आई स्यू यू अगर नहीं हुआ तो। ऐसे ओके कोई बात नहीं, अगर स्यू होना होगा तो वो मेरी किस्मत है, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट जो है रिसर्च जरूर करूंगी। एंड 3 दिन तक शी वॉज वेरी वरीड कि यू आर वेरी स्वीट, यू डोंट नो अबाउट माई हस्बैंड। एक और कोई स्लिमिंग सेंटर का ब्रांड था, उन्होंने उसको क्लोज डाउन कराया था, शट डाउन कराया था फरीदाबाद में, और वो आपको छोड़ेंगे नहीं। एंड शी वॉज मोर वरीड अबाउट मी, यू नो। तो आई सेड ओके, जो होगा देखी जाएगी, इट्स ऑल डेस्टिन्ड, है ना, जो होगा देखेंगे, बट यू डोंट वरी अबाउट मी, लेट्स गो एंड डोंट वरी अबाउट योरसेल्फ इवन, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बस मुझे आपसे सिर्फ ईमानदारी की कमिटमेंट चाहिए। इवन आपको छोले भटूरे भी खाने हो, जस्ट इन्फॉर्म मी कि मैं ये खा रही हूँ, एंड आई विल अलाउ यू। मैं कभी किसी को नहीं रोकती हूँ, केक खाना है, किटी में जाना है, कहीं पर शादी ब्याह में जाना है, मैं बोलती हूँ जा रहे हो तो खा लो, ये मत पूछो वहां जाके क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। जब वापस आएंगे घर में, घर हमारा अपना है, तो 24 आवर्स से 48 आवर्स में आई नो वो फैट को कैसे आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम से निकालना है। सो विल डू इट, हम डिटॉक्स कर लेंगे, बट डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे ही एक और बड़े सारे केसेस हैं इस तरीके से डिस्कस करने के लिए, जहां पर बिल्कुल ऐसा चैलेंज था कि एक यंग गर्ल की मैरिजेबल एज थी और उसके अंजुम, आंख से, अंजुम, just curious, do you still help people? Anjum, do you still help people with their weight या issues and all? दैट्स, यस So यस, in case some of the
in case some of the people who are listening to us right now and the people who will watch this interaction later on YouTube, how can they get in touch with you, Anjum? अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं लोग, they want to get in touch with you, how can you do so? अभी तो मेरे से व्हाट्सएप पे ही संपर्क हो सकता है. मेरा फोन नंबर वैसे सब जगह आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा. इट्स it's an open book. 9810160595. Anybody can write in the chat also. आपके स्टाफ में से अगर कोई लिख सकता है जी तो जी जी जी. anybody can contact me with their all reports, with their all conditions, or body, mind and soul. I'm the health and wellness coach. So body, mind and soul कोई भी प्रॉब्लम है, so you can contact me. I would love to help you out. और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, स्पेशली थायराइड वाले लोग ये मानकर बैठ गए हैं, उनको आई वोंट से एक्सपर्ट, लेकिन उनको किसी ना किसी स्लिमिंग सेंटर या ट्रेनर्स ने ये दिमाग में बिठा दिया है, मैडम आपको थायराइड है तो आप पतले नहीं हो सकते. दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मेरे पास बहुत सारे विमेन, बहुत सारे पेशेंट जो 128, 118, 135, क्योंकि थायराइड तो जहाँ आपका 8-10 किलो बढ़ा वहाँ पर थायराइड तो आपका डिस्टर्ब हो ही जाता है, इम्बैलेंस हो ही जाता है. सो जितने भी लोगों ने मेरे साथ जर्नी की है, 80% पीसीओडी पेशेंट थे, थायराइड पेशेंट थे, आर्थराइटिक था. बिल्कुल एक दो के तो मैंने बायरियाट्रिक सर्जरी रुकवाई हैं कि आप मुझे 6 महीने दे दीजिए. इवन उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट जो है 6 महीने बाद की करवाई मैंने कि लेट मी ट्राई इट आउट. नहीं हुआ तो फिर सर्जरी तो कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं, आप करिए. लेकिन आई हैव सेव्ड मेनी पीपल फ्रॉम द सर्जरीज ऑल्सो. सो डोंट गो अबाउट द सर्जरीज एंड ऑल. और इसी उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमने ये जर्नी जो है कंप्लीट की और सक्सेसफुली की. और मैं आप लोगों को बता दूं, माइंड का सबसे ज्यादा रोल है. There was one girl 118 kgs, symbiosis से MBA किया हुआ, and she couldn't manage her own self. Her father and mother, they have just given up on her, and they said it's very disheartening for me to state that कि मैम अगर इसके बाद इसको कुछ भी हो जाता है, we are not going to regret because we have tried everything. And she is not ready to do. इतनी उसकी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी. सो वहां जब मैंने उसकी काउंसलिंग स्टार्ट की तो नितिन, यू वोंट बिलीव, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स के रिग्रेशन में जाते जाते, अभी हिपोकैम्पस की बात की, प्रॉब्लम पता है कहां से स्टार्ट हुई थी? व्हेन शी वाज 3.5 years old. Wow. And one incident that was so traumatic for her, she was carrying with her. Wow. That was with her mother and her dadi, grandmother, because she was from the मुझे आई एम सो सॉरी टू स्टेट, लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से थी जहां उनको लड़का चाहिए था, एंड शी वाज द फर्स्ट डॉटर डिलीवर्ड. और वहां से उसको जो निग्लिजेंसी का, और जो एक बच्चा कैरी कर लेता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, And she was struggling with the weight loss issue. I mean, was she overweight? या 118 किलो. Wow. इसका मतलब आप ये सोच के देखिए कि वो जा रही है जिम में और ट्रेनर कह रहा है कि दौड़ो ट्रेडमिल पर, और प्रॉब्लम कहीं और है. प्रॉब्लम कहीं और है. आप कह रहे हो कि अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करो, प्रॉब्लम कहीं और है. And this is all here. This is all inside you, right? क्योंकि नितिन क्या होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है, थोड़ी सी साइंस मेरी हो जाती है लेक्चर्स में, आई एम सो सॉरी, बट लेट मी टेल यू, क्योंकि मेरा हमेशा कहना है नितिन, हम आकाश की दूरी जानते हैं, पाताल की दूरी जानते हैं, समुद्र की दूरी जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानते अंजुम. ये सच है. और आज आपकी इंस्पिरेशनल बातों को सुनकर के इस बात पर एक मोहर और स्टैंप लगती जा रही है, जैसे जैसे हम डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं, कि ये कितना सत्य है. या सो हाइपोथैलेमस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू द फीलिंग ऑफ फुलनेस. हंग्री है, कई बार बहुत टेस्टी खाना होता है नितिन, लेकिन हम क्या कहते हैं? पेट भर गया, नियत नहीं भरी, हम खाना और चाहते हैं लेकिन माय स्टमक इज फुल. क्या समझते हैं आप सभी लोग, जो 80 किलो का हो गया है, जो 100 किलो का हो गया है, जो 110 किलो का हो गया है, क्या वो पतले नहीं होना चाहता? लेकिन उसको कंट्रोल नहीं है.
सिर्फ कह देने से, जो डाइटिशियंस बहुत सारे करते हैं, 80% डाइटिशियंस करती हैं कि वो 1200 कैलोरी का चार्ट बना के दे देती हैं, 500 कैलोरी का, 900 कैलोरी का। और बहुत सारे लोग, एक रिसर्च के अनुसार एक इंसान एक लाइफ में कम से कम 6 से 7 बार डाइटिंग पर जाता है, डाइट चार्ट्स ट्राई करता है। ये एक डेटा है साइंटिफिक। मैं पतले होना चाहती हूँ, मैं सुंदर लगना चाहती हूँ, मुझे पता है मैं समाज में जाती हूँ तो मैं 100 किलो की भद्दी लगती हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज आपके बॉडी के सिस्टम्स फेल हो चुके हैं, आपको वापस उनको कंट्रोल में लाना है। सो हाइपोथैलेमस जो है, मैं लोगों का हाइपोथैलेमस सेट करती हूँ सो दैट दे दे कैन फील द सेटिस्फैक्शन। उनको वो सिग्नल नहीं आता है नितिन कि उनका पेट भर गया है, इसीलिए बिल्कुल। उनकी डाइट इतनी ज्यादा होती है एंड दे कैन नॉट कंट्रोल। उस लड़की का प्रॉब्लम यही था कि सब लोग घर के, पता है, वो किचन में ताला लगा देती थी कि अगर मैं नहीं खाऊंगी, अगर मेरी डाइट प्लान चलेगा तो घर में कोई भी नहीं खाएगा। दैट वॉज द कंडीशन। आप उसका मेंटल स्टेट सोच सकते हो। या। और सारे घर वाले उससे परेशान हो चुके थे। वो कहती मेरे 2 बच्चे और हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, नौकर चाकर हैं, उनके 11 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो यू नो बड़ा परिवार है, और वो ताला लगाकर अपने को रूम में बंद कर लेती थी चाबी के साथ कि अगर मैं नहीं खाना खाऊंगी तो घर में कोई नहीं खाना खाएगा, एवरीबॉडी विल डाई। तो इस तरीके से जी। हाइपोथैलेमस जब उसका सेट हुआ, जब उसको कंट्रोल, क्योंकि बॉडी कंट्रोल करेगी, और बॉडी को कौन कंट्रोल करेगा? माइंड कंट्रोल करेगा। तो आपके सारे सिस्टम्स जो हैं, चाहे उसमें हिपोकैम्पस है, अमिगडाला है, हाइपोथैलेमस है, लिम्बिक सेंटर है, इन सबको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो जी आप किसी को कुछ भी कहते रहिए, तुम भद्दे लगते हो, तुम्हारी शादी नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा। पीपल डोंट थिंक, पीपल डोंट केयर, पीपल कांट डू एनीथिंग। दैट्स द ट्रेजेडी। और ये एब्सोल्युटली। ट्रेजेडी जो है वो लोग नहीं एब्सोल्युटली। समझ पा रहे। हर कोई जो है ज्ञान दे देता है एक पूरा समझाने के लिए, काउंसलिंग के लिए, बट प्लीज लेट मी शेयर विद एवरीवन, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम मी, टॉक ओनली टू द एक्सपर्ट। बहुत सारी लेडीज मेरे पास बिल्कुल। आए, अरे मैडम आपने हमें ये खाने को दे दिया, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि ये तो गलत है। तो मैं हमेशा, मेरा एक स्टेटमेंट रहता है, आपकी फ्रेंड क्या पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरल है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है? अगर नहीं तो प्लीज डू नॉट डिस्कस विद मी कि मैंने आपको क्या दिया और क्यों दिया, जस्ट फॉलो इट। सो एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। आजकल क्या एब्सोल्युटली। है, व्हाट्सएप की दुनिया चल रही है, एक डाइट प्लान होता है, एक फ्रेंड बनवाती है एक डाइटिशियन से, और वो पूरे किटी मेंबर्स जो है, पूरे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप में जाता है। जी। ऐसा नहीं होता, एवरी इंडिविजुअल बॉडी इज डिफरेंट। आपके अंदर सारे केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट है, आपके घर का रूटीन डिफरेंट है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ डिफरेंट है। सो एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन फाइट इन द लाइफ। तो प्लीज गो टू एक्सपर्ट, अपनी समस्या बताएं, उसका निदान करें, क्योंकि ये बहुत डीप लेयर्स में यहाँ पर होता है, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट विल एंड फ्रॉम हियर ओनली। Brilliant, brilliant. I hope, I mean, people have understood the root cause of a lot of these health issues that people face. अंजुम, मजेदार रही है अब तक की डिस्कशन आपसे, और बहुत समय बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ। और you know, I really feel as if it was yesterday when we met. Or any last few message out of your book or out of your journey that you want to share with the audience today about whatever it is that you wish to say, because बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं आज। This is a 1 hour show. पता ही नहीं चला कि आपके साथ डिस्कशन करते करते कभी घंटा बीत गया है। जो शाम ढल चुकी है, अंधेरा बढ़ रहा है, मैं बाहर हूँ इस वक्त, और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ your last few words of wisdom and advice for the audience today. मेरा जो, मैं बुक से ही बात करती हूँ, मेरी जो लास्ट पेज है, मेरा जो लास्ट पेज है, ये मैंने सबसे पहले लिखा था। मैं अपनी जी। हर बुक का लास्ट पेज सबसे पहले लिखती हूँ। मेरी सेकंड बुक भी जो अमेजन पे हिट हुई है, इंसाइक्लोपीडिया फॉर जिम ट्रेनर्स, जी। जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को अगर कोई करना चाहता है तो उसकी तैयारी उससे कर सकता है। सो दैट इज आपो दीपो भाव। आपको कोई नहीं जगा सकता, आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, और हम भी जब मोटिवेट करते हैं तो आपको लाइफ में क्या करना है, सेट योर पर्पस। आप सोसाइटी को क्या वापस देकर जाना चाहते हैं,
आपको लोग कैसे याद करें, सबसे पहले आप अपना लास्ट डिसाइड करें, दैट्स गोल जो है पहले है क्या हमारा, तभी तो हम जर्नी स्टार्ट करेंगे. पीपल आर जस्ट लिविंग लाइक दैट, उनको नहीं पता क्या करना है. पीपल, Wow. बिकॉज आई एम इंटरनेशनल करियर यूसीएलए यूएसए से मैं सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ. और लोग डिग्रीज के बाद मेरे पास सबसे ज्यादा, नितिन, जो लोग आते हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट्स आते हैं, सबसे ज्यादा सेकेंड ईयर ड्रॉप Hmm. आउट्स. वहां तक पहुंचकर उनको रियलाइज होता है दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी. ये मेरा मेरा काम, मतलब मैं इसमें खुश नहीं हूँ या एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा. सो बहुत जरूरी है कि आप पहले ये तय निश्चित करिए कि आप अपनी जर्नी को एंड कैसा करना चाहते हैं, तभी आप उसको begin कर Very nice. पाएंगे. Very nice. Humane, बहुत ही that's my message. Human excellence with humane. हम्बल रहना, ह्यूमेन रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप अपना कुछ भी एक्सेल कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ईगोइस्टिक होना और हम्बल ना होना, मुझे लगता है एजुकेशन बिकम्स नलिफाई अगर आप हम्बल नहीं रह सकते, अगर आप सबसे स्माइल करके बात नहीं कर सकते, अगर आप सबको इक्वल नहीं. आई एम क्वाइट नाउ लर्नेड पर्सन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फैमिली में या फ्रेंड्स में जो लोग इतना नहीं पढ़ पाए हैं, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट एट पार विद मी. डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू कैन लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड ऑल्सो. सो डू नॉट लूज योर हम्बल. हम्बलनेस को लूज नहीं करना चाहिए. तो यू कैन, यू नो, बहुत सारी बार जब मैं बहुत एरोगेंट लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है जब लोग बड़ी तारीफ करते हैं, इफ आई मीट समवन हु इज वेरी एरोगेंट, तो मेरे लिए उनकी अचीवमेंट्स या उनका रुतबा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है अभी तो ये ह्यूमन ही नहीं बने. तो क्या अभी इन्होंने अचीव किया, क्या क्या जर्नी इन्होंने अभी क्या लर्निंग की है. सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन, बी हम्बल. अगर यूनिवर्स ने हमें कुछ भी ऐसा एक, और सबके अंदर कुछ ना कुछ पावर होती है, टैलेंट होता है कि हम उससे किसी की मदद कर सकें, तो प्लीज़ मदद के लिए आगे आए. और नितिन, इसीलिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और आपने बात की कि बच्चे घर में हैं, छत नहीं है किसी के पास घूमने के लिए, या गार्डन सबके पास नहीं है, आई बिकेम सो वरीड कि फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल पे. मैं तब ज़्यादा तुम्हारे कहने पे 2018-19 से तुम मुझे बोल रहे थे कि स्टार्ट द यूट्यूब चैनल एंड टॉक. लेकिन वहाँ से मैंने अपने टॉक्स जो है शुरू किए, क्योंकि आई वॉज वरीड अबाउट कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आई नो सम ऑफ देम आर फ्रॉम वेरी वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, जहाँ पर उनके पास जगह नहीं होगी, एक घर में बहुत सारे लोग भाई बहन रह रहे होंगे, वो क्या कर रहे बिल्कुल होंगे, वो स्ट्रेस में ना आए, वो ट्रॉमा में ना आए. तो मैंने अपने बिल्कुल. टॉक शोज शुरू किए थे, और एक मेरी कहानी सभी लोग अगर यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें, अकबर बीरबल की कहानी, वो उस समय मेरी बहुत हिट हुई थी, मेरे स्टाफ मेंबर्स और उनके भी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स. क्योंकि वहाँ मेरी सबसे बड़ी जो समस्या थी ह्यूमेन होने की, लोगों ने क्या किया नितिन, और वो अभी भी यही हुआ, ऑक्सीजन के टाइम पे भी इतनी कमी होती नहीं, लोग होर्डिंग शुरू कर देते हैं. और उस Hmm. समय क्या हुआ Absolutely. था कि उस समय एक न्यूज़ मैंने देखी थी जिसने मेरा दिल हिला दिया था. वो यूएस की न्यूज़ थी, एंड द लेडी वाज क्राइंग इनसाइड द कार, वो मैंने शेयर भी की हुई है अपने चैनल पे. एंड शी वाज क्राइंग कि मैं 18 घंटे नर्सिंग की ड्यूटी कर कर आ रही हूँ, और लुक एट द स्टोर, पूरा स्टोर खाली था, जैसे पोचा लगा हुआ होता है, उसके लिए एक चीज भी नहीं थी. एंड शी वाज क्राइंग कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं. उसने मेरा इतना दिल हिला दिया था कि मैंने फिर वो अकबर बीरबल की कहानी की और पंचतंत्र की कहानियां शुरू की कि लोगों को रियलाइज हो. और मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या आपका पड़ोसी का बच्चा अगर भूखा सोएगा, आप सो जाओगे चैन से? आपने तो घर में भर लिया सब कुछ, है ना, 4 हफ्ते का राशन, 4 हफ्ते का दूध, सब कुछ ले आया, और जिसको नहीं मिला, क्या हम इतने इनह्यूमेन हैं कि हमारे पड़ोसियों का बच्चा, मतलब हमारे किसी जो भी, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान भूखा सो जाएगा, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमने बहुत सारा सामान लूट लिया, होर्डिंग कर ली, हमारी कैपेसिटी थी. सो दैट टाइम आई वेंट विद माय हस्बैंड टू द लोकल शॉप, और मैंने बोला नमक दे दो. आई वाज जस्ट आस्किंग कि नमक दे दो, क्योंकि
घर में खत्म होने वाला। ही सेड कि मैम नमक खत्म हो गया। आई सेड क्यों? क्योंकि तब तक मेरे को ये रियलाइज नहीं हुआ व्हाट पीपल हैव स्टार्टेड। अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुआ था लॉकडाउन का। तो मैंने बोला क्यों? कहते मैम पता नहीं क्या हुआ है, कुछ अनाउंस हुआ है और लोग 3-3 4-4 जो है पैकेट्स जो है वो सॉल्ट के, शुगर के सब कुछ ले गए। मैंने कहा हाँ लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तो क्या हुआ? नेसेसिटी जो है वो तो फुलफिल करेगी गवर्नमेंट, वो तो भिजवाएगी। एक दिन नहीं तो 2 दिन के बाद सप्लाई आ जाएगी, 3 दिन के बाद आ जाएगी। सो लोग इतना पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही ऑक्सीजन के टाइम पे हुआ है नितिन। लोगों ने होर्डिंग की और बहुत सारे ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जहां पर लोगों ने 100 सिलेंडर को ब्लैक मार्केटिंग किया। और ऐसा पैसा कमाना, इस तरीके से जीना सोसाइटी में। मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या हम लर्नेड हैं? क्या हम एजुकेटेड हैं? क्या हम ह्यूमन हैं? दैट्स द क्वेश्चन आई विल लीव विद for everyone who is listening me. Please be humane. Behave like a human. If you call yourself human, otherwise start calling yourself animals. हम लोग अगर इतना भी नहीं सोच सकते हैं तो फिर हमारी जितनी भी प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिव सोसाइटी, आई हैव अ क्वेश्चन मार्क फॉर दैट। ऐसा कमाई, ऐसा पैसा, इस तरीके की होर्डिंग, इतनी इमरजेंसी थी तब भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एंड देन द लास्ट पॉइंट, स्टॉप कर्सिंग योर गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। ये नहीं है कि अभी 10 साल, हम पहले भी 10 साल पीछे भी, 20 साल पीछे भी, हमेशा हम सरकारों को जिम्मेवार ठहराते आए हैं। इंडिया में गंदगी है, गवर्नमेंट हमारी ऐसी। फेंकता कौन है कूड़ा? अपने घर से निकलते ही हम यहाँ से घूमने जा रहे हैं लद्दाख या घूमने जा रहे हैं शिमला, घूमने जा रहे हैं नैनीताल, लेकिन अंकल चिप्स के पैकेट हम कार से बाहर फेंकेंगे। And then government is not doing their duty. Are we doing our duty as a human, as a civilized person, as a patriotic person, as a citizen? That's the question I want to leave for everyone. Please answer yourself, answer your soul. किसी ने कुछ नहीं देखा, आपकी आत्मा ने सब कुछ देखा। Absolutely, Please Anjum. mind, your soul is watching. Nobody is watching. Red light cross कर ली, कोई नहीं खड़ा था. Your soul is Your watching. soul is watching. Please Your soul is watching. watch it carefully. Absolutely. Absolutely. Very, very nicely said, Anjum. It was a pleasure talking to you. और कैसा है वहां पर आपकी डॉटर के फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा है ये जानकर कि उनकी आपकी डॉटर की फ्रेंड्स का रिएक्शन ये जानकर कि उनकी फ्रेंड की सिस्टर आई है इंडिया से, कैसा रिएक्शन है उनका? I'm sure, right? So the way you keep yourself physically and mentally so fit, I'm sure this must have been the reaction there, Anjum. Am I right or wrong? Lastly, Nitin, मैं बात बोलूं? Wow. So No. looks like there's a bit of a network issue. Anjum. Can you hear me? Anjum, I think we have lost connection with you. Or no problem there. No problem there. अभी दोस्तों शायद अंजुम के कुछ नेटवर्क No, Anjum, we can't hear you. Looks like there is some network problem. Sweden. There is some network problem, Anjum. We can't hear you. I think we lost connection there with Anjum. She was right there in the US. और वहां से Anjum connect कर रही थी. I think she has tried to connect back. Anjum, yes, welcome back. Can you hear me? Can you hear me, Anjum? Yeah, I can. Can you hear me? Yes, I can hear you. जी, तो क्या reaction था आपका मेरी बात पर? मैं उस बात पे भी आ रही हूँ. When we went to Sweden for her engagement, तो everybody was telling, okay, sister आई है क्या? I got so annoyed. So I have gained purposefully 5 kgs to look like a mother for her marriage. ऐसे नहीं मुझे मम्मी लगना.
That is interesting. That is interesting. Now, great. Anjum, चलिए, thank you very much. It was an Thank you. enriching, and I'm sure it was for everybody. दोस्तों कैसी रही आज की discussion अंजुम के साथ? Put it in the chat box. Right. Thanks. Awesome. Whatever it is that you want to type in the chat box, because I wanted to say that to Anjum क्योंकि आज इन्होंने अपना समय निकाला इस ऑथर टॉक शो में इन्होंने इन्होंने ये आई और इन्होंने अपने आइडियाज शेयर करे आप लोगों के क्वेश्चंस लिए अपनी जर्नी शेयर करी इट वाज सच एन इंस्पायरिंग जर्नी अंजुम द पावर ऑफ माइंड वी टॉक्ड अबाउट आपने योगा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी आपने आपने जिस तरीके से आज मैसेज दिया है शुरुआत हमने की वैक्सीनेशन के पॉइंट से और इस वक्त हम इस बात को एंड कर रहे हैं अपने डिस्कशन को इस बात से वी हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट राइट वी हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर योर प्रॉफिट ये जो आप अपॉर्चुनिटी को भूनने की कोशिश कर रहे हैं दिस कैन कम लेटर बट राइट नाउ वी ऑल हैव टू बी ह्यूमन इफ यू आर ह्यूमन इनफ देन that is the best thing that we can do in these times, right? And the last message from me, Nitin. I am on my mission to prepare, entrepreneur in fitness and wellness industry. And let me share with everyone after this COVID, exactly आगे next 30-40 days के लिए people are going to be very conscious. They need help. They want like society needs a learned nutritionist, not the dietitians. They need learned gym trainers, not the pehelwan. They need learned aerobic trainer, zumba trainer, so and yoga trainer. और योगा ट्रेनर के हमारे इंटरनेशनल कोर्स जो है आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी इफ दे वांट टू join the fitness and wellness nationally और योगा को मेरे साथ स्प्रेड कराने में पूरे वर्ल्ड में जरूर वो करें तो दोस्तों जो भी इस चीज में इंटरेस्टेड हैं आपके पास चैट बॉक्स में अंजुम का व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप नंबर पर जी आप जरूर ज्वाइन करें आई हाईली रिकमेंड मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा वर्ल्ड में Thank you so much because that health is wealth. So please join the mission so that we can spread more and more fitness, more and more health to everyone and more happiness to everyone. Great, Anjum. Because of network issues, there are major network issues right now. Unfortunately, बहुत मजेदार रहा पूरा सेशन लेकिन अचानक से ये बाद में थोड़ा सा नेटवर्क इशू फेस हो रहा है आपकी आवाज बहुत ब्रेकिंग अ लॉट we can't hear you clearly लेकिन मैं आपके बिहाफ पर पूरी कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ दोस्तों फिटनेस एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और बढ़ेगी और अगर आप डॉक्टर अंजुम पडियाल के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं to become a fitness expert and to become somebody that people are looking for you must get in touch with her and you must associate with her she is a lady who can really turn your life around and through you she can turn around the life of a lot of people who may need your help and people who are looking for help इसी चैट में इसी लाइव चैट में अंजुम का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के डॉक्टर अंजुम पडियाल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अंजुम इस वक्त यूएस में है लेकिन जल्दी ही वापस इंडिया आएंगी और उसके बाद उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं अभी भी उनके प्रोग्राम चल रहे हैं आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एसोसिएट with somebody as knowledgeable and somebody like as expert as Dr. Anjum Padial. Anjum, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आपके साथ एक बार फिर से इसी तरीके से रूबरू होंगे और उस बार हम और डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो शायद अभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम कुछ चीजें जो हम डिस्कस नहीं भी कर पा रहे उस पर हम और डीप डाइव करेंगे. So once again, Anjum, thank you very much.